So, hello students, lecture number 4, chapter number 13, it's called amines. Now, in this lecture, we have discussed the topic of chemical reaction of amine compound. So, here I wrote alkylation and acylation. फिर उसके बाद है reaction कार्बामेन reaction, then after with the nitrous acid with the Hinsberg reaction, and then after we discussed the electrophilic or substitution reaction of aromatic compound. Okay, तो बेटा यहाँ पे लिखा मैंने alkylation and acylation. So what is the meaning of alkylation? तो हमने पढ़ा था we have to adding a alkyl group in the amine compound, the reaction known as a alkylation. So we having a main thing is a primary amine. Okay, बेटा ध्यान दें यहाँ पे. तो रिएक्शन आपको बुक्स में नहीं दिया है, फिर भी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी. सो ये कंटेन लाइक that is the ethanamine. That is the ethanamine. Okay, so react with the alkyl halide like C2H5I. Okay, so H remove from the amine, react with the I, remove the HI from the reaction, एंड देन ऑब्टेन हियर. मैं डायरेक्टली बेटा इसको लिख दूँ, C2H5 लिख दूँ तो चलेगा ना. तो यहाँ पे बनेगा C2H5 NH and C2H5. That is the secondary amine. Okay, the name of this compound is N-ethyl ethanamine. N-ethyl ethanamine. Same as do more reaction with the secondary amine. Same as react with the C2H5I. In that case, same as HI remove from the reaction. So obtain here. मैं डायरेक्टली बेटे ऐसे लिख दो चलेगा ना. So we having C2H5 थ्राइज एन हो गया बेटे. हैविंग वन लॉन पेयर, मैं लॉन पेयर लिखना भूल गया तो ये भी लिख दे बेटे यहाँ पे. सो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एन डाइथाइल ethanamine. Same as again do the reaction with the C2H5I, iodoethane. So here that having one lone pair. Okay बेटे, तो यहाँ पे I'll do the partition of this one ना. So it is converted in a C2H5 plus and I minus. So ethyl cation accept the electron pair from nitrogen. तो यहाँ पे बनेगा quaternary ammonium salt बनेगा. So here having C2H5 4N plus dot I minus, that is called quaternary ammonium salt. Same as react with the aniline. अगर आपने बेटे ऐसे रिएक्शन लिखा इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो यहाँ पे here having same as aniline, you can do the reaction with yourself. That is called a primary amine, aromatic amine, that is called aniline. Same as react with the iodomethane. Okay, same as remove HI from the reaction, then obtain here L-methyl aniline. Here having NH and CH3, that is called N-methyl aniline, methyl aniline. Same as react with the one more molecules like iodomethane. So removal of the HI from the reaction and obtain
एन, हाँ मैं इसको बेटा ऐसे लिख सकता हूँ ना, CH3 ट्वाइस चलेगा बिकॉज ऑफ वाई 2 टाइम्स मिथाइल ग्रुप है, दैट्स वाई द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल aniline. Same as do the again reaction with the CH3I. तो क्या बनेगा, यू नो दैट ये बनेगा क्वाटरनरी सॉल्ट बनेगा, that is converted in a quaternary ammonium salt and CH3 thrice dot I minus, that is called quaternary ammonium salt. So it's a very easy reaction with the primary amine. So adding the alkyl group in the amino compound, that's why this reaction known as a alkylation. Same as if you adding a acyl group in the amine, that is the reaction known as a acylation. Okay, I'll do number 2 reaction. एक बार बेटे ध्यान से देख लो, लिखना है. Okay, हो गया. Then after number 2 reaction, that is called acylation. तो बेटे इस बुक्स में लिखा है, यू कैन ओपन द बुक्स एंड रीड प्रॉपरली, क्योंकि इसमें रिएक्शन ही है. सो यहाँ पे लिखा है दिस रिएक्शन दैट इज कॉल्ड acylation एंड ऑल्सो इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन. ओके, सो यहाँ पे आई विल जस्ट राइट डाउन number 2, दैट्स कॉल्ड acylation. Okay, so adding the acyl group in the amine compound, that is called acylation. तो यहाँ पे ये जो बेटे ग्रुप है ना RC डबल बॉन्ड O, that is called acyl group. Okay, so which compound having this group? Having 2 compound, one is acetyl chloride, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटे, या फिर एसिल क्लोराइड RC डबल बॉन्ड O Cl, we can take as a reactant like this one, या फिर एसिड एनहाइड्राइड, that is called acid chloride. एंड ये है अपना एसिड एनहाइड्राइड. both having acyl group. So यहाँ पे when we adding the acyl group in the amine compound, the reaction known as a acylation. ओके बेटे, तो आपकी बुक्स में भी बेटे लिखा है कि एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस रिएक्ट विद द एसिड क्लोराइड और एनहाइड्रेट बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज नोन एज अ acylation बेटे. तो यहाँ पे ये रिएक्शन में वी हैव टू एडिंग द acyl group in the amine compound. So we have given one thing is a ethanamine है बेटे, ध्यान दें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेटे ethanamine. तो C2H5NHNH. ओके बेटे, ध्यान दें यहाँ पे. ओके, दिस इज आवर कंटेंट लाइक अ ethanamine. हाँ, इसको मैं ऐसे लिखूँ तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. हैविंग 1 lone pair react the ethanoyl chloride. So here we having content like a C double bond O Cl having a CH3, that is called ethanamine. That is called ethanoyl chloride. Ethanoyl, या फिर इसको बोलते बड़े एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड. ओके बेटे, ध्यान दो यहाँ पे होगा क्या इन दिस रिएक्शन. सो दिस नाइट्रोजन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द कार्बन, बराबर. अगर कार्बन को डोनेट किया तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी. मैं बीच में बेटे लिख रहा हूँ, ध्यान दें यहाँ पे क्या होगा. आई जस्ट डू द ब्रैकेट ओवर हियर. सो वी हैविंग कंटेंट लाइक C2H5NHNH, या फिर इसको ऊपर लेके जाओ ना. ओके, सो मेक अ बॉन्ड विद द कार्बन. ये प्लस हो गया बेटे,
ये हो गया माइनस बिकॉज वाई इलेक्ट्रॉन्स ने एक्सेप्ट किया फ्रॉम द नाइट्रोजन। बाकी में इसको यहाँ पे रखता बेटे, ध्यान दें यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा Cl। सो इन दैट केस कार्बन एंड 5 बॉन्ड इट इज़ नॉट पॉसिबल। इन दैट केस ये ऑक्सीजन का ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, ओवर द ओ साइड। हाँ, ओ पे ऑलरेडी बेटे कितने इलेक्ट्रॉन है, हैविंग 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गोइंग टुवर्ड्स ओ साइड। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन गए तो कार्बन पे चार्ज माइनस था, प्लस न्यूट्रल हो गया, इस पे चार्ज माइनस आया। तो बीच में बेटे लिख रहा हूँ मैं, कुछ ऐसे बनेगा, ध्यान दो, लास्ट में कुछ ऐसे बनेगा। ओके, सो C2H5 NH प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हो गया 6, दैट मीन चार्ज लाइक माइनस एंड यहाँ पे आया बेटे Cl हो गया। ओके, देन आफ्टर व्हाट विल हैपन हियर, ये बेटे पूरा रिएक्शन हो गया, यहाँ तक अपना हो गया। देन आफ्टर क्या होगा कि दिस हाइड्रोजन डोनेट इलेक्ट टू, ये इसने नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया बेटे, तो इस पर चार्ज आया प्लस, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन कौन लेके गया बेटे, Cl लेके गया, और वापस ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गए, बॉन्डिंग साइड। आज समझ 3 प्रोसेस साथ में हो गई। तो यहाँ से जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन था, ध्यान दे बेटे, यहाँ पे जो H और N के बीच में इलेक्ट्रॉन था, 1 फ्रॉम हाइड्रोजन एंड 1 फ्रॉम नाइट्रोजन, तो बोथ द इलेक्ट्रॉन गोइंग टुवर्ड्स नाइट्रोजन साइड, बराबर। तो इसने एक्सेप्ट किया, तो क्या हो गया, प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया। देन आफ्टर यहाँ से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हिट्रोलाइटिक फिशन हो गया, बोथ द इलेक्ट्रॉन गोइंग टुवर्ड्स Cl साइड, इसने ले लिया, इधर प्लस आया, बाद में इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, माइनस प्लस न्यूट्रल हो गया। इन शॉर्टली बना के यहाँ पे, सो इट इज कन्वर्ट इन C2H5 NH C डबल बॉन्ड O, देन CH3 और रिमूव क्या होगा बेटे यहाँ पे, हाँ HCl, दैट इज कॉल्ड एन इथाइल इथेनेमाइड। द नेम इज एन इथाइल इथेनामाइड। तो बेटा समझो एक बार फिर से, इन दिस रिएक्शन हुआ क्या, तो दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो असाइल ग्रुप था ना, अटैच विद द अमाइन, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है बेटे ऑलरेडी, दैट इज लॉन पेयर। तो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, कार्बन को, तो कार्बन ने एक्सेप्ट किया, तो चार्ज माइनस आना चाहिए बेटे यहाँ पे। तो कार्बन का चार्ज यहाँ पे क्या है, माइनस है, ध्यान दो बेटे, यहाँ पे इसका चार्ज क्या हो गया, प्लस हो गया। साथ में ही अगर ऐसा रहा तो कार्बन हैविंग 5 बॉन्ड पॉसिबल है नहीं बेटे, तो क्या होगा, इन दैट केस ये कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है ना, गोइंग टुवर्ड्स ओ साइड, एक्सेप्ट किया तो बॉन्ड हो गया कम, तो ये बॉन्ड निकल गया बेटे, इधर माइनस चार्ज आ गया। इन द लास्ट सेक्शन क्या होगा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन किसको देगा, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ पे आएगा, बॉन्डिंग में आएगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, Cl। तो यहाँ पे Cl माइनस हो गया, H प्लस हो गया, इट इज कन्वर्टेड HCl एंड ऑब्टेन द एन इथाइल इथेनामाइड। तो इन दिस रिएक्शन वी हैव टू वी जस्ट एडिंग द असाइल ग्रुप in the amine compound, that's why this reaction known as a acylation. Okay, clear? Same as if you will do the one more example with the secondary amine, तो वही होगा, डायरेक्टली बेटा भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। सो वी कंटेन लाइक C2H5 and C2H5 having a H plus, directly I'll just write down here. हाँ, we can take a both of ये या फिर ये भी ले सकते बेटे, कोई भी लो तो उसमें प्रॉब्लम मतलब बनेगा क्या, असाइल ग्रुप ऐड हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे चलो मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड ON Cl, तो डायरेक्टली आई जस्ट राइट डाउन हियर H फ्रॉम द अमाइन कंपाउंड, Cl फ्रॉम द असाइल कंपाउंड एंड ऑब्टेन हियर C2H5 and C2H5 and COCH3 डायरेक्टली लिख दिया। तो यहाँ पे NN डाइमिथाइल हैविंग 2 कार्बन, दैट इज कॉल्ड इथेनामाइड। तो इसका नाम हो गया NN डाइथाइल
ethanamide. This reaction known as the acylation of amine compound. Same as he will take a aromatic amine. ओके बेटे ध्यान दे, ये हो गया क्लियर. अगर मैंने ये रिएक्शन किया विद द एनिलीन, एनिलीन अपना कौन है, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन है. ध्यान दो बेटे, अगर मैंने रिएक्शन लिखा विद द एनिलीन तो बनेगा वही प्रोडक्ट, उसमें भी क्या होगा, एसाइलेशन होगा, मतलब एसाइल ग्रुप उसमें ऐड हो जाएगा. लाइक वी हैविंग कंटेन लाइक एनिलीन. That is a primary amine. That is a primary amine NH2, that is called aniline. Okay, react with the, चलो यहाँ पे I'll just take here acidic anhydride मैंने बेटे यहाँ पे लिया. So here having CH3 COO CON CH3, या फिर इसको थोड़ा इजी का रहे बेटे तो इसको मैं ऐसे लिखूं, चलेगा. CH3 C डबल बॉन्डो C double bond N CH3. This is also a acylation reaction in the presence of pyridine. अभी चलेगा डायरेक्ट वे, I'll do the reaction with this one. तो यहाँ पे होगा क्या, तो ये जो ग्रुप है that is called acyl group. It is also acyl group. तो यहाँ से H रिमूव होगा, H अटैच विद द ऑक्सीजन, तो यहाँ पे रिमूव क्या हुआ, CH3 COOH रिमूव हो गया और बचा क्या, COCH3 अटैच विद द अमाइन ग्रुप. तो यहाँ पे ये बन गया बेटे अपना NHCOCH3. That is called N-phenyl ethanamide. That is called N-phenyl ethanamide. या फिर दैट इज कॉल्ड एसिटानिलाइड. एसिटानिलाइड, द रिएक्शन नोन एज अ एसाइलेशन. तो बेटे बुक्स में आपको एक और रिएक्शन दिया हुआ है, ध्यान दो, लिखा है देखना कि अमाइन्स ऑल्सो रिएक्ट विद द बेंजोइल क्लोराइड. दिस रिएक्शन नोन एज अ बेंजोइलेशन. तो बेटे सेम रिएक्शन है, पर रिएक्शन विद द इथेन, अमाइन्स रिएक्ट विद द बेंजोइल क्लोराइड, the reaction known as a benzylation. So we having content like CH3 NH2. बुक्स में बेटे दिया हुआ देख लो, ध्यान दो. That is called primary amine. Okay, and react with the benzoyl chloride. Okay, so here having C6H5, ये हो गया अपना मिथेन एमाइन. That is called benzoyl chloride. देखो बेटा बेंजोइल और बेंजाइल में फर्क कितना है. ये अपना हो गया बेंजोइल क्लोराइड. मैं लिख रहा बेटे ध्यान दो, ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया, थोड़ा चेंज, थोड़ा समझो उसको बेटे. अगर मैंने यहाँ पे लिया COCl लिया, क्या लिया, COCl, दैट इज कॉल्ड बेंजोइल क्लोराइड. बेंजोइल, थोड़ा समझो, दैट इज कॉल्ड बेंजोइल क्लोराइड. बेंजोइल क्लोराइड. अगर मैंने थोड़ा चेंज किया बेटे यहाँ पे, इफ आई राइट डाउन लाइक दिस स्ट्रक्चर, थोड़ा ही फर्क है पर पूरी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, चेंज हो गई. यहाँ पे मैंने लिखा बेटे CH2Cl, दैट इज कॉल्ड बेंजाइल क्लोराइड. दैट इज कॉल्ड बेंजाइल क्लोराइड. ओके, इतने बड़े फर्क, बेंजाइल और
बेंजल में इतना ही फर्क है, ध्यान दो, ये पूरा याद रखना है। अगर COCl है तो बेंजोल क्लोराइड, और CH2 तो क्या होगा अपना बेंजाइल क्लोराइड होगा, जो आपका 11th में आएगा हाइड्रोकार्बन में अल्काइलेशन ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ टॉल्यून। ओके, सो दिस रिएक्शन नोन एज अ बेंजोलेशन। तो सेम होगा, यहाँ से H रिमूव होगा, यहाँ से Cl होगा, तो बना के अपने यहाँ पे CH3NH CO C6H5, द रिएक्शन नोन एज अ बेंजोलेशन। तो ये हुआ क्या, एन मिथाइल बेंजामाइड, दैट इज कॉल्ड एन मिथाइल बेंजामाइड। तो दो रिएक्शन बेटा हो गया आपका, वन इज द अल्काइलेशन, सेकंड इज द एसाइलेशन। नाउ डिस्कस नंबर 3, दैट इज कॉल्ड कैट रिएक्शन, कार्बन एलिमेंट टेस्ट बेटे। ओके, यहां तक पूरा देख लो। ओके, सो नंबर 3 दैट इज कॉल्ड कार्बन एलिमेंट टेस्ट CAT, not cat, that is called carbyl-amine test. Okay, this test with only primary amine। तो बेटे ध्यान दो, ये लेबोरेटरी में अगर वी हैव टू फाइंड आउट डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी अमाइन, अगर डिटेक्ट करना है तो वी जस्ट टेक दिस रिएक्शन और हम प्राइमरी अमाइन को डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट जो है बेटे सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन देता नहीं है। तो इट्स वेरी सिंपल टेस्ट। सो यहाँ पे लिखा बेटे मैंने यहाँ पे एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस on heating with the chloroform and ethanolic KOH to form a isocyanates or carbamine which are foul smelling substance बेटे। तो जब भी हमने प्राइमरी अमाइन एलिफेटिक या एरोमेटिक को हीट किया विद द क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH, इन दैट केस ऑब्टेन अ कार्बोलामाइन या फिर आइसोसाइनेट कंपाउंड ऑब्टेन होता है। दिस रिएक्शन नोन एज अ कार्बोलामाइन टेस्ट। और ये रिएक्शन बेटे सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन देता नहीं, दैट्स वाई अगर लैब में वी हैव टू फाइंड आउट द अमाइंस, सो डू द टेस्ट एंड ऑब्टेन अ दिस प्राइमरी अमाइन। ओके, सो यहाँ पे बेटे ध्यान दो, आई जस्ट राइट डाउन द प्राइमरी अमाइन, मैंने सिंबॉलिक लिखा है यहाँ पे RNH2, बाद में हम एग्जाम्पल लेंगे दोनों का। री विद द क्लोरोफॉर्म, सो यू नो द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 हियर। I'll take a 3 number of KOH to balance the reaction। तो ये बेटे यहाँ पे मैंने लिखा है इथेनॉल, इसको हीट किया। सो व्हाट विल हैपन हियर, ओके, जो 3Cl री विद द 3K क्या बन गया, -3KCl। तो मैं यहाँ पे लिखूँ -3KCl। ओके, बचा क्या, 2 हाइड्रोजन यहाँ से मैंने लिया, 1 हाइड्रोजन यहाँ से लिया, 3 हाइड्रोजन और 3 OH, 3H and 3OH, इट इज कन्वर्ट इन -3H2। तो बचा क्या अपने पास, RNNC। सो कंबाइन दिस वन and obtain a RN plus triple bond C minus। Okay, that is called alkyl isocyanide, alkyl isocyanide। Okay, same as we will take a ethenamine। तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे RK प्लेस पे क्या डालना है, सिर्फ I'll just take your ethyl। So here having CH3, CH2 and NH2, that is called ethenamine। Okay, so react with the same as chloroform with the same as alcoholic KOH। Here I'll just set down a ethanol, heat, then what happen, you know that CH3 CH2 N ट्रिपल बॉन्ड से बन जाएगा बेटा अपने यहाँ पे। तो यहाँ बना CH3 CH2 NC भी लिखो तो भी चलेगा बेटे, या फिर N प्लस ट्रिपल बॉन्ड से माइनस करो। ओके, प्लस 3
KCl plus 3H2, that is called ethyl isocyanide, that is called ethyl isocyanide, ओके, या फिर इथाइल कार्बोलेमाइन, या फिर इसको बोलेंगे बेटे इथाइल कार्बाइल एमाइन, सेम एज यू विल टेक अ, लिया अपन ने एनिलीन यहाँ पे ले बेटे, यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी हैविंग कंटेन लाइक एनिलीन, तो एनिलीन का फॉर्मूला स्ट्रक्चर वी नो दैट इज एनिलीन, इट इज ऑल्सो प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन, ये अपना कौन है बेटे, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन, okay, do the reaction with the chloroform with a 3 number of KOH, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH लिखा बेटे यहाँ पे मैंने, इसको हीट किया तो ये जो कंपाउंड मिला दैट हैविंग फॉल स्मेल, बहुत ही बदबूदार कंपाउंड है ये, ओके, सेम एज डू द सेम रिएक्शन विद द एनिलीन, तो यहाँ पे बना गया अपना over the benzene having N plus triple bond C minus plus 3 number of KCl plus 3H2, that is called phenyl isocyanide, that is called phenyl iso, या फिर फिनाइल कार्बोलेमाइन, या फिर इसको बोलते बेटे फिनाइल कार्बाइल अमाइन, ओके बेटे, तो दैट हैविंग ऑल्सो अ फॉल स्मेल सब्सटेंस, सो दिस रिएक्शन नॉन एज अ कार्बोलेमाइन टेस्ट, क्लियर बेटे, तो यहाँ से हम इन दिस रिएक्शन वी जस्ट डिटेक्ट द प्राइमरी एमाइन, बिकॉज ये जो रिएक्शन है, ये जो टेस्ट है वो सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइन देता नहीं है, दैट्स वाई अगर हमको लैब में प्राइमरी एमाइन डिटेक्ट करना है, सो एज अ दिस रिएक्शन वी फाइंड आउट द प्राइमरी एमाइन, ओके, ये बेटा वो आपका हो गया कार्बल एमाइन टेस्ट, ओके, एक बार पूरा ध्यान से देख लो और पूरा ये नोट डाउन कर लो। ओके, सो नंबर 3 a reaction with nitrous acid बेटे यहाँ पे, so when the primary aliphatic amine react with the nitrous acid, so it is converted in a unstable alkyl diazonium salt, okay बेटे, तो यहाँ पे ध्यान दो अनस्टेबल है, so react with the water molecules in the presence of H plus, so liberated N2 gas and obtain a alcohol, okay, तो बेटे ये जो टेस्ट है बुक्स में आपको लिखा हुआ है, तो दिस टेस्ट, तो क्वांटिटिव एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन इज यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन बेटे, तो यहाँ पे ध्यान दो इन दिस केस है, तो यहाँ पे लिखा है नाइट्रस एसिड, सो हाउ टू कम दिस वन, सो नाइट्रस एसिड कम फ्रॉम 2 कंपाउंड, ध्यान दे बेटे यहाँ पे बुक्स में नहीं फिर भी समझ लो हाउ टू कम HNO2, सो वी हैव 2 कंटेन लाइक हियर NaNO2 प्लस HCl, so it is converted in a HNO2 plus क्या होगा बेटे NaCl, and this is react with the primary aliphatic amine and obtain a alkyl diazonium salt, and it is unstable, so when we react with the unstable diazonium salt with the water molecules in the presence of H plus, obtain a alcohol and liberated a N2 gas, okay, so here we having contain like a of amines, चलो मैंने बेटे यहाँ पे लिया है RNH2 with the example of this one, RNH2, okay, react with the NaNO2 plus 2HCl, या फिर इसके प्लस बेटे हम क्या ले सकते हैं HNO2, ओके, सो व्हाट विल हैपन हियर, तो यहाँ पे होगा क्या ये पूरा समझो, okay, so we having a Na with 1 Cl, तो क्या बन गया यहाँ पे, रिमूवल ऑफ द
NaCl. Okay, how many H that having? So 2H यहाँ से, समझना पूरा, 2H यहाँ से, मतलब कितना हो गया? 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन. तो क्या बन गया बेटे यहाँ पे? माइनस 2H2 रिमूव हो गया. आया समझ में ना? Na विथ Cl, NaCl, 2H, 4H विथ 2O2, 2H2. अभी बचा क्या अपने पास बेटे? तो ये के सेक्शन बचा, एक नाइट्रोजन बचा, 2 Cl था, एक बचा बेटे, तब बना के अपने पास यहाँ पे बन गया RN N डॉट Cl माइनस, यहाँ पे आया बेटे प्लस. अल्काइल डायजोनियम बेटे, दैट इज कॉल्ड 2 नाइट्रोजन, दैट इज एजो, अल्काइल डायजोनियम क्लोराइड. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज अल्काइल डायजोनियम chloride. That is unstable. When we react with the water molecules, in that case, react with the water molecules in the presence of H plus. Okay, so what will happen here? मैं आपकी समझ के लिए I'll just do the partition of water molecules. आपकी समझ के लिए, एग्जाम ऐसा नहीं करना है. So we having H plus and OH minus. ओके, आपकी समझ के लिए कर रहा बेटे, समझो. तो H विथ Cl, HCl, N2 निकल गया, OH कहाँ पे बेटे? यहाँ पे आ गया. तो क्या बना यहाँ पे? ROH प्लस N2 प्लस क्या होगा? HCl. So liberated N2 gas and convert in alcohol. Same as if we will take here ethylamine. So we having contain like a ethylamine, CH3, CH2 and NH2. Okay, react with the same as NaNO2 plus 2HCl in the bracket में क्या लिखे बेटे यहाँ पे? HNO2. So same as यहाँ पे क्या होगा? Remove the NaCl from the reaction and also remove the water molecules from the reaction. So यहाँ पे बना क्या अपना? CH3, CH2 and triple bond N plus dot Cl minus. Ethyl diazonium chloride, that is called ethyl diazonium chloride. Okay, same as react with the water molecules in the presence of H plus. In that case you know that क्या बनेगा बेटे यहाँ पे? CH3, CH2OH प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस क्या होगा बेटे? HCl हो गया, ये निकल गया. ओके, दैट इज ऑब्टेन अल्कोहल एंड quantitatively alcohol and nitrogen gas liberated in this reaction. That is the reaction with the aliphatic amine with the nitrous acid. Okay, clear? यहाँ तक बेटे देख लो पूरा ध्यान से. Then after we go a reaction with the Hinsberg reaction, या फिर इसको बोलते हैं benzene sulfonyl chloride. That is known as a Hinsberg reactant. Okay, यहाँ तक पूरा देख लो बेटे. ठीक है, उसको नोट डाउन भी प्रॉपर तरीके से कर लो. ठीक है, okay. So reaction with the benzene sulfonyl chloride, that is called Hinsberg reagent. Okay बेटे ध्यान दो. तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी amines react with the benzene sulfonyl chloride and obtain a sulfonamide product. Okay, तो what is the formula of that one? So यहाँ पे मैं बेटे reaction डायरेक्ट लिखता हूँ. So we having contain like a benzene sulfonyl chloride. So that is the structure of benzene sulfonyl chloride. एक एक्स्ट्रा टॉपिक है बेटे, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कंपाउंड? और सेपरेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन का सेपरेशन के लिए ये कंटेन यूज होता है, ये कंपाउंड यूज होता है. दैट इज बेंजीन सल्फोनाइल
chloride. Okay, react with the primary amine. We having primary amine like a ethanamine. Okay, that is called ethanamine. That is called ethanamine. Ethanamine. Okay, that is called benzene sulfonyl chloride. That is called benzene sulfonyl chloride. So it is a very easy reaction. So you know that what will happen here, Cl from the benzene sulfonyl chloride, H from the amine. So remove the HCl from the compound, obtain here like here having H डबल बॉन्डो यहाँ पे बेटे क्या आ गया NH आ गया. सो हियर हैविंग NH and C2H5. दैट इज कॉल्ड N-ethyl benzene sulfonamide. दैट इज कॉल्ड N-ethyl benzene sulfonamide. लिखो कि चलेगा बेटे, चलो लिख देता हूँ N-ethyl benzene sulfonamide. ओके, सेम एज डू द रिएक्शन विद द सेकेंडरी अमाइन. तो उसमें सेम एज होगा N-डाइमिथाइल क्या होगा, बेंजीन सल्फोनामाइड. तो रिएक्शन इज सेम विद द सेकेंडरी अमाइन. सो बेटे ध्यान दो, अगर मैंने आगे रिएक्शन किया, दिस इज द कंपाउंड इज सॉल्युबल इन अल्कली. ओके, व्हेन वी एडिंग इन द KOH, तो ये बेटे क्या हो गया, सॉल्युबल क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा. ओके, सो it is called secondary sulfonamide. That is called, we have liquid, that is called secondary sulfonamide. Okay, same as if you do the reaction with the secondary amine, having content like a benzene sulfonyl chloride, react with the secondary amine. So he having N with a C2H5 with a C2H5. In that case, same as Cl from the benzene sulfonyl chloride and H from the amine compound. So removal of the HCl from the reaction. So here having a product like N-dimethyl benzene sulfonamide हो गया. S double bond O and with the C2H5, here also having C2H5, that is called N-diethyl benzene sulfonamide. Okay, that is called a tertiary sulfonamide. आई ऑल्सो पोस्ट, मैं आपको साथ में भी इसकी PDF भी पोस्ट कर रहा हूँ, तो बेटे साथ में वो भी देखना है. ठीक है, ये हो गया क्लियर रिएक्शन विद द बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड. दैट इज कॉल्ड हिंसबर्ग रिएक्शन. बेटे इसका यूज़ क्या होता है, ध्यान दो. इसका यूज़ होता है सेपरेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ अमाइन कंपाउंड. सो इफ यू हैव अ कंटेनर, अगर हमारे पास एक कंटेनर में, बेटे ध्यान दें यहाँ पे, इसमें इफ यू हैविंग अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, उसको सेपरेट करना है. सो वी कैन यूज दिस रिएजेंट टू सेपरेट ऑल द अमाइंस फ्रॉम द मिक्सचर. ओके, हम बेटे एक्स्ट्रा में ले लेंगे. मैं आपको एक्स्ट्रा व्हाट्सएप भी कर रहा हूँ ग्रुप में कि ये हाउ टू सेपरेट देम. मैं आपको केवल रिएक्शन लेकर आपको भेज रहा हूँ, बुक्स में नहीं पढ़, मैं आपको अलग से दे रहा हूँ. ठीक है, यहाँ तक आपको हो गया क्लियर. ओके बेटे, थैंक यू.